So yes, again standard 9, a very good day. Continuing with our chapter number 8, that is framing of Indian Constitution. We have already done lots of things in it, and we have left our topic from which are the silent features of India. Means describing Indian silent features. So yes, what we have done in the last thing is 4 different silent features: framing of Constitution of India, preamble, and other important parts of preamble, namely secular India, socialist India, and democratic India. Okay, so I am not going into depth with that topics because we have already done them. So let's start with the 5th silent feature, which says that unitary state in the times of emergency. See, the term itself known as a unitary state in time of emergency means simply when there is some kind of pandemic or any kind of national emergency occurs in the country never get divided or solitary, they stand as the one to fight it out. Okay, so let's study in depth. Emergency provisions have been included in the Constitution. When the President declares national emergency, India automatically becomes a unitary state and remains a unitary state as long as the emergency is in operation. Means India stands as a one. We can take a very short example of what is happening right now in the country. That is, of course, due to this pandemic and COVID-19 situation, we all got into a lockdown. The India as a whole stood together to complete or compete with this kind of emergencies. Okay. As well as any kind of terrorist attack or any other man-made or natural calamities which creates an emergency kind of situation. There are certain rules and regulations being made up by the government, and it is being followed by each and it have to be followed, and it is being followed by each and every resident individual of the country, and without any kind of caste, creed, discriminations or any such kind of things. The country also solves its purpose standing as one together. Okay, and as soon as such country is in terms of emergency, everybody forgets every kind of discrimination and they automatically stands together unless pandemic kind of situations or any kind of such situations gets held out, or we can have a free lens again. Then there is a bicameral legislature. Okay, now the Union Parliament in a bicameral legislature is the house of a people, that is Lok Sabha, is the lower house, and the Council of States, Rajya Sabha, is the upper house of the Union Parliament. The House of the People is superior than the Council of States, as it is an elected house. See, now we all know the judiciary system. This is again an example of democracy. There is a Lok Sabha and then there is a Rajya Sabha. We all know that election is being held at the primary states in the country, and that it is being derived as well. It
the Lok Sabha. After approval being over there, then it goes to the Rajya Sabha, the upper house, and then the law goes to the parliament, signed duly by the president, and it becomes a law, policy, rule whatsoever is there. But as we know that first approval have to be from the lower house, it is being stated that Lok Sabha, Lok Shahi Desh, as we know, has a more importance and power compared to the different stages of government, and that is again a silent feature, because we many times think that only the government is there who is doing everything. Government is acting on behalf of everybody, and we don't have any power as a citizen. We are lacking our due courses, but no, there are lots of people who actually are very aware about their rights and duty, and they duly exercise them, and government stood very fair to them. So hence Lok Shahi Desh is being said. India is one of the Lok Shahi Desh, and we do have full and democratic freedom to upraise our voice. Okay. Then again, two sets of government. Now what is again state government and central government? Apart from that, there are three tier government mainly. But let's study what's being given in the silent feature. There is a government for the whole of India known as Union Government, and there are 29 states government. The administration of a union government is conducted by the Union Council of the Ministry in the name of President. Similarly, the administration of every state is considered as a Council of Ministry in the name of Governor, or what we say, Chief Minister. Okay, we all know what do you mean by dual government. Dual government means simply once there is a central government होता है और एक state government होता है. Central government is being held and is being elected where the president's rules are being followed, and we all have to follow the same rule, that is at a national level. And we all know that 29 states have their own different legislature and being governed by the different governors. Okay, the chief CMs we say they are simply the governors. State even have some powers. Each and every governor have been given with the power that they can act according to the need of their own state. जरूरी नहीं है कि गुजरात में कुछ steps important थे जो लिए गए थे वही steps कहीं और भी लिए जाए. जरूरी नहीं है कि जो बिहार में शायद एजुकेशन की कमी है तो वहाँ एजुकेशन अपलिफ्ट किया जाए, पंजाब में किसी और चीज की होगी. So accordingly the governor works, and they even duly have to take a permission from the national ministry. Okay, which is being under president's rule. So simply that is one of the silent feature that India is on a dual economy, as well as we have three tier, not only two tier. One is president, okay, one is national level, the second is state level, and the third is what we have at the cities or at a gram panchayat or a municipal corporation we used to say. Okay, and on the three tier system the whole nation moves and runs smoothly. See, I hope that this was a thing very much clear कि हमारे इंडिया में 2 से 3 तरह के गवर्नर जो है, मतलब गवर्निंग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके अंडर में सारी चीज़ें आती हैं. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग सिटीजन कि अब हमें कौन सा स्टेप कहाँ लेना है, बिकॉज देर आर सर्टन मैटर्स कि जिसको कोर्ट तक ले जाया जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाता है, और फिर हाई कोर्ट तक ले जाया जाता है. तो ये क्या हुआ, ये भी अगेन इट इज सिमिलरली द 3 tier सिस्टम. जैसा तुमको कुछ कंप्लेन करनी है तो यू गो टू फर्स्टली यू गो टू अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यू डोंट गो टू मोदी जी, राइट? तो इट इज एज सिंपल एज दैट. होप यू गॉट इट. आफ्टर दैट दिखाई independent, impartial and signal integrated judiciary. Okay, now what is this? India has single integrated judiciary with a Supreme Court as an apex court. Provisions have been made and ensured that the independence of judiciary and impartial conducted of justice. Okay, simply impartial justice and single judiciary means एक ही लाइन में अगर बताया जाए कानून सबके लिए एक है.
Okay, there are certain rules, there are certain regulations and everything which are being followed and formed duly by our constitution. और हम ये भी बोल सकते हैं इफ आई से इन हिंदी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखो कुछ क्राइम होते हैं, कुछ फॉल्ट मिस्टेक्स होती हैं, तो हर एक क्राइम, हर एक छोटे बड़े मिस्टेक्स के लिए कोई ना कोई रूल्स एंड कोई ना कोई रेगुलेशंस फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। अब उन रूल्स एंड रेगुलेशंस कि अगर ऐसा किया तो क्या सजा, ऐसा किया, बट एज वी ऑल नो कि डे टू डे लाइफ में ऐसे अलग अलग क्राइम्स आते जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती जा रही है कि जिसका आंसर शायद कॉन्स्टिट्यूशन में कभी है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई कभी मेंशन ही नहीं है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो जैसे जैसे नई नई चीज़ें होती जाएगी वैसे वैसे वो अपने अंदर चेंजेस लाते जाएंगे, कुछ चीज़ों को ऐड करते जाएंगे, बट दैट डजंट मीन्स कि कोई छूट जाएगा या कोई गलत करके भी छूट जाएगा, ठीक है। नई चीज़ें इंप्लीमेंट करने का मतलब ये है कि तुम थरोली किसी भी चीज़ को स्टडी करो और जस्टिस जो है वो अगर तुमको कोर्ट से नहीं मिली यू गो टू सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली यू गो टू हाई कोर्ट। और यहाँ पे सिंगल जुडिशरी क्यों बताया गया है कि यहाँ पे सिर्फ पार्टिसिपेशन डिफरेंट कोर्ट्स का है, बट दैट डजंट मीन्स कि उनके पास किसी भी तरह का अलाउंस है कि यू कैन जज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रूल्स एंड प्रोविजंस। अल्टीमेटली जो भी जस्टिस है, कानून सबके लिए एक ही, मतलब कि जो भी गलती है उसकी जो भी सज़ा है वो डिफाइनली हर एक कोर्ट के लिए सेम होगी और वो देनी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। और उसके लिए सब इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं तुम अपना वकील चूज कर सकते हो, कोर्ट अपना वकील चूज कर सकती है, एवरीथिंग जुडिशियल सिस्टम हैज ऑल द वेज टू गेट आउट ऑफ द मैटर। और इवन कुछ असेंबलीज होती है, इफ यू नो कि कुछ मैटर्स बहुत ही छोटी बड़ी होती है, पैसों की होती है, कुछ भी बिजनेस रिलेटेड ट्रेड की होती है, कि जिसमें कोई बड़ा क्राइम तो इन्वॉल्व नहीं है, पर शायद कोई कुछ मान नहीं रहा जिसको अपने के डरा धमका के करना पड़े, तो ऐसी असेंबली भी होती है कि कभी कभी कोर्ट तक बात पहुंचती है पर दिन तारीख चालू ना हो, उसकी वजह से उन चीज़ों को आउट ऑफ द कोर्ट ही रिसॉल्व कर लिया जाता है। ओके, आफ्टर दैट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये मैंने जो बात तुमको पहले 2-4 बार अलग अलग पॉइंट्स के अंदर कही है वही है। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ में अगर हमें चेंज करना है, ठीक है, तो हम पूरा प्रोविजन नहीं चेंज कर सकते, हम पूरा लॉ नहीं बदल सकते, पर शायद कुछ सर्टन चीज़ें जो चेंज करनी है उसके अंदर अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, मतलब कि नोटिफिकेशन, एक क्लैरिफिकेशन रिटर्न में दे सकते हैं कि पहले ये रूल था, अब ये रूल है, अब तुमको ये फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज सिंपली अमेंडमेंट्स बीइंग ब्रॉट। और हर साल इतने सारे अमेंडमेंट्स आते हैं। मैं तुमको एग्जाम्पल दूं तो हम बोलते हैं कि ट्रैफिक रूल्स का एक अमेंडमेंट ले लेते हैं कि शायद पहले सिर्फ हेलमेट कंपलसरी था, अब देखो तो यू हैव टू वेयर मास्क, और शायद तुम्हारा जो है तुमको पहले सिर्फ लाइसेंस इम्पोर्टेंट था, अब तुम्हारे पास लाइसेंस के साथ साथ तुम्हारा आधार कार्ड होना चाहिए, तुम्हारा जो आईसी बुक होता है दैट इज इन अ डिजिटल फॉर्म, ठीक है, तो तुम्हारे पास सारा डॉक्यूमेंटेशन कंपलसरी रखना है। अगर फिजिकली तुम नहीं रख पा रहे हो तो तुमको अपने फ़ोन के अंदर रखने हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले तो हमारी जो टैक्सेशन सिस्टम है या जो भी प्राइस राइज एंड कंज्यूमर्स इरप्शन वो सब है, उसमें कॉन्स्टेंटली चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। जो सपोज कि पहले कुछ टैक्स रेट अलग था, अब कुछ टैक्स रेट अलग हो गया है, तो दैट आर बीइंग गिवन बाय द अमेंडमेंट्स। उसके लिए पूरे लॉ को उठा के चेंज नहीं करते, उसके लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन, एक क्लैरिफिकेशन लाते हैं। What do you mean by it now? The Constitution lays
अमेंड द कॉन्स्टिट्यूट। कैसे किया जाता है? फॉर स्पेसिफाइड अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मोर देन हाफ स्टेट एट द प्रेजेंट 15 आउट ऑफ 29 इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जब जीएसटी आया तो कैसे आता है? देखो, तुमको कोई बड़ा सा डिसीजन लेना हो तो ऐसा नहीं कि इफ इट इज़ नॉट एन इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है, वो कोई परमानेंट, जैसे हमने बोला कि टैक्स अमेंडमेंट लाना हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, किसी भी तरह की पॉलिसीज़ हो जिसको एक्सरसाइज करना हो गवर्नमेंट को, तो वो अगर बहुत बड़ा हो तो उसमें स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर पूरी सिस्टम, इतना बड़ा भारत है, इतने बड़े इंडिया के अंदर अगर लोग उस चीज़ को अप्रूव नहीं करेंगे या स्टेट्स उसमें गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे तो इज इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो उसके लिए क्या किया जाता है? 29 में से 15 स्टेट, मतलब कि तुम बोल सकते हो कि 50% से भी ज़्यादा हुआ। ठीक है, 29 में से 15 स्टेट्स अगर हाँ बोल रहे हैं कि हाँ ये अमेंडमेंट ला सकते हैं हम पूरी कंट्री में, तभी वो लाया जाता है। जैसे कि जीएसटी इंप्लीमेंट करने से पहले ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स हैं, आउट ऑफ 29 states, 22 to 23 states have given approval, तो वो आराम से हो गया। ठीक है, तो hence you bring out the amendments. So amendment to the constitution. Okay. Now next is universal adult suffrage. Okay, suffrage. The Indian Constitution has confirmed that the right to vote to every adult citizen, those who have completed 18 years and age limit was 21. ठीक है, बहुत सिंपल सी ये तो बात थी कि हर एक जो बंदा एडल्ट हो चुका है, मतलब कि पहले 21 साल के बाद वोट करने की परमिशन थी, अब 18 साल के बाद वोट करने की परमिशन है। मतलब कि उनके पास राइट है कि वो अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज कर सकते हैं, पार्टी को चूज कर सकते हैं। हेंस ईच एंड एवरी सिटीजन हु आर अबव द एज ऑफ 18 इयर्स और हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ अटेन द एज ऑफ 18 इयर्स, उनको कंपल्सरीली वोट करना चाहिए। ठीक है, सेक्युलर स्टेट, अगेन ये चीज रिपीट हुई। हम सबको पता है कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट एज देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ अ स्टेट एंड सिटीजंस हैव बीन गिवन फ्रीडम टू रिलीजन। जो भी इंसान जो भी रिलीजन फॉलो करना चाहता है वो उस रिलीजन को फॉलो कर सकता है। पूरे इंडिया के अंदर कोई रिलीजन फॉलो होता नहीं है। देयर आर एवरी काइंड ऑफ पीपल बीइंग लिविंग इन इंडिया फॉलोइंग देयर ओन रिलीजन, हैप्पीली लिविंग। ओके, तो सिंपली then judicial review. Okay, judicial review is a power conferred to the Supreme Court and a High Court is an examining the constitutional of law passed by the Union Parliament and the state legislature executing the actions and ordinances, constitutional amendments and judicial decisions. It has been given a power to the declaration of unconstitutional of any of the above inconsistent with the constitution. The Supreme Court has also been given a power to interpret the provisions of the constitution. अब देखो, ये बहुत सिंपली बात कही गई है कि अगर कोई भी लॉ बनाया गया है, कोई भी चीज ऐसी जो है कि which is not feasible for following and which is not even good for the government as well as for the state government or for the public also, तो उसके अंदर किसी भी तरह की नाइंसाफी हो रही है तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, पब्लिक, वी बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हम उस डिसीजन के अंदर इंटरप्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसे प्रोविजंस कि जो गलत है, जो फिजिबल नहीं है, उसको चेंज करने के लिए या उसको कंप्लीटली अबॉलिश करने के लिए भी हम रिक्वेस्ट कर सकते है। इसलिए बोलते हैं ना, वो जागो ग्राहक, जागो टाइप ऑफ थिंग्स, कंज्यूमर्स बिहेवियर, इकोनॉमिकल मार्केट के अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी उतनी ही एप्लीकेबल है। ठीक है, और एवरीबडी हैव राइट टू स्पीच। ठीक है, सबको बोलने का हक है, अपने रिव्यूज़ को प्रेजेंट करने का हक है और उससे वो हक कोई छीन नहीं
सकता। 13 इज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। अब ये बहुत ही कॉमन है, हमने पूरा चैप्टर कर लिया है। We all know that there are certain fundamental rights and duties being presented by the Constitution which have been given to us, and everybody and every citizen of India must follow the rights and not follow the duties and upheld with their rights. ठीक है? The Constitution has confirmed the 7 fundamental rights of the citizen, and 42 constitutional amendments has specified the fundamental duties. हमें अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना है और हमें अपने राइट्स करने हैं। चैप्टर नंबर 9 हमने पूरा कर लिया है। देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन हियर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हमने पूरा टॉपिक कर लिया है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी व्हिच प्रोवाइड्स गाइडेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर फ्रेमिंग देयर policies regarding economy, socialism and any kind of work being held in the country. ठीक है? Last but not the least one, a silent feature which is there in our Indian Constitution is special provisions for scheduled caste and scheduled tribes. ठीक है? And other backward classes. अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मोस्टली क्या हो सकता है? You say, we all know कि, और हाँ अभी हम इतना बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एवरीबडी आर इक्वल, अगर इक्वल ही है तो फिर ये राइट्स क्यों, ऐसा सब कुछ, ठीक है। बट सी देयर वर टाइम्स, कुछ टाइम ऐसा था कि जब गवर्नमेंट हैव टू डू दिस थिंग्स, क्योंकि उस वक्त जो है जो भी लोअर कास्ट या लोअर पीपल थे उनकी उतनी वैल्यू नहीं होती थी, ठीक है। उनको लोग जो है वो पूरा अलग रखते थे। there were untouchability rules and every kind of those things. तो अब इतने माइनॉरिटीज के अंदर आते हैं वो लोग, ज़्यादा नहीं है, अगर बहुत सारे होते तो फाइट आउट भी कर सकते हैं, पर फाइट भी कैसे करें। तो क्या डज दैट मीन्स कि उनके जो बच्चे हैं या वो लोग हैं उनको एज अ ह्यूमन ट्रीट ना किया जाए, उनके साथ कोई भी तरह की इनह्यूमन एक्टिविटी की जाए? तो हाँ, पहले ऐसा होता था, उनको स्कूल्स में पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको गवर्नमेंट में वर्क नहीं मिलता था, उनको कोई प्राइवेट सेक्टर वाला रखता नहीं था, ऐसा माना जाता था कि ये बैड लक होता है, दिस एंड दैट, एवरी काइंड ऑफ, यू नो। जस्ट अ मोमेंट, आई एम कमिंग, जस्ट अ मोमेंट। Now this is more visible. हाँ, perfect. हाँ, तो उनको रखा नहीं जाता था और ये सब कुछ होता था। तो गवर्नमेंट जो थी उनको कंपल्सरीली ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़े और ये रूल्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ा कि जो ये कहते थे कि यस अगर SC ST है या कोई हैंडीकैप है उनको भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। लेट्स रीड दैट आउट। स्पेशल प्रोविजंस इम्प्लाई रिजर्वेशन फॉर द सीट्स इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर द SC ST एंड द OBCs, ठीक है। स्पेसिफिकली रिजर्वेशन दिया गया कुछ कास्ट को, जो शेड्यूल कास्ट और OBC में आते थे, ठीक है, दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस, और उसकी कुछ प्रोविजंस भी है जो स्टैंडर्ड 10th में आएंगे तुमको, कि वो कौन से सेक्शन के अंदर, ओके, कौन से सेक्शन नंबर के अंदर उनको ये सारा रिजर्वेशन और ये सारे बेनिफिट्स दिए गए थे, ठीक है। दिस प्रोविजंस हैव बीन मेड टू इंश्योर देयर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। अब ये प्रोविजंस इसीलिए नहीं किए गए थे कि कोई भी लोग इसका कोई भी तरीके का गैर फायदा उठाए या कोई भी पब्लिक इसको गलत तरीके से ले। ये जो सारी चीजें हैं वो इसीलिए की गई थी सो दैट उनको भी इक्वल राइट्स मिले, उनको भी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको भी पढ़ने का एक राइट टू एजुकेशन अगर हम अप्लाई कर रहे हैं कंट्री में तो राइट टू एजुकेशन सबके लिए इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर्टेन पर्सन विल गेट, ओके। और ये सब कुछ उनको मिले, इसीलिए हमने जो है वो ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म किए थे। देयर इज अ प्रोविजंस टू अपॉइंट अ स्पेशल commission for the scheduled caste and scheduled tribe.
classes. This commission makes recommendation for the welfare of the measures. ठीक है, एक स्पेशल कमेटी बिठाई गई, एक स्पेशल कमीशन को अपॉइंट किया गया कि जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के अंदर किए जाने वाले अमेंडमेंट्स और उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसके लिए कुछ पॉलिसी, कुछ प्रोविजंस फॉर्म करे कि जिससे ये पता चल सके कि उनके लिए जो भी वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो हम क्या चेंजेस ला सकते हैं. Other measures are waiving of the fees, scholarship and concession for this sections. उसके अलावा क्या किया गया, उनकी फीस माफ कर दी गई जो स्कूल्स कॉलेजेस की थी उनको. उसके अलावा स्कॉलरशिप्स मतलब कि सामने से पढ़ने के पैसे दिए गए अगर माफ नहीं किया गया तो. और उसके अलावा उनको कंसेशन मतलब कि शायद हम बोल सकते कि गैस है तो उनको गैस के सिलेंडर्स फ्री मिलते थे या अकॉर्डिंगली कुछ भी चीज़ होती थी, तो शायद एग्जाम फीस नॉर्मल बच्चे के लिए 10,000 है तो उनके लिए 5,000 ही होगी. और ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो बच्चों, समझो इतना छोटा सा एक पॉइंट है. हमको अभी इन टुडेज लाइफ हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो हमको ये लगता है कि ये गलत है मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब एक है अब तो सब. बट देयर वर टाइम्स कि जब उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था. ठीक है, अब सोचो कि उनके पेरेंट्स को या जो भी है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था, मतलब कि उनको काम ही नहीं मिलता था, तो फिर वो पैसे कहाँ से लाएंगे. ठीक है, और उनके बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे. अगर कोई पढ़ने देगा भी सही, और एक तो अलाउ ही नहीं करते थे, पर अगर जो कोई अलाउ कर भी रहा है तो पैसे कहाँ से लाएंगे. इसीलिए उनकी फीस जो है माफ़ कर दी गई. कुछ जगह कुछ सोर्सेज में उनको कंसेशन दिया गया और कंपल्सरी रूल लाना पड़ा ताकि कोई भी कल सुबह उठ के ये ना बोल सके कि दिस इज राइट, दिस इज, मैं इसको नहीं रखूंगा. हर एम्प्लॉय, हर सिटीजन, हर एक इंसान को दूसरे रिलीजन, दूसरे इंसान चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी है और उसको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी जरूरी है. ये हमारा जुडिशरी सिस्टम कहता है. ठीक है, इंडिया इज अ कंट्री विच इज हैविंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बोले. The measures are regarded as a positive discriminations for the promotion of welfare of a weaker section. देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, फिर से मैं पढ़ती हूँ क्या कहा गया है. This measure is regarded as a positive discrimination. हालांकि अब उसको हम नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन की तरह लेते हैं क्योंकि शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है इन सब चीज़ों के अंदर पढ़ने की, बट बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू द SC/ST वो अपना गलत फ़ायदा और इन प्रोविजंस का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं. जबकि जिस वक्त ये सब कुछ थिंग्स ले की गई तब एक ही इंटेंशन था कि ये डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा, इन लोगों के वेलफेयर और इन लोगों की आगे बढ़ने के लिए, अच्छाई के लिए होगा. ठीक है, इसलिए नहीं कि ये लोग इसका गलत फ़ायदा उठाएं, ताकि जो भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, मतलब कि ऐसे लोग कि जो ज़्यादा नहीं है, मतलब जो माइनॉरिटीज़ है, कि जैसे पार्सीज आर ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड इन माइनॉरिटीज, दो आई डोंट नो इफ दे हैव रिजर्वेशन और नॉट, बट स्पेसिफिकली SC/ST मतलब क्या होता था, ये लोग जो होते थे वो जंगलों में रहेंगे या आउट बोलते हैं ना कि अपने सर्बन एरियाज, सबर्बन्स में भी से जो होते हैं कि गांव में नहीं, दे आर नॉट अलाउड इन अ सिटी, टाउन और विलेज. उनको वहाँ से 2-4 किलोमीटर के आगे के एरिया में ही रहना है. they even cannot enter the village or town without a permission. ठीक है, वो कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, उनको स्कूल में सब बच्चों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती थी, वो जो है उनके घर का कोई खाना नहीं खाता था, उनको सिर्फ और सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए और ऐसी सब चीज़ों के लिए रखा गया था. ठीक है, तो वो तो कितनी गलत बात हुई. सोचो, उनके पास इक्वल राइट होने चाहिए, उनके पास वो भी एक्चुअल में दे आर ह्यूमंस. इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट कि दे हैव बीन टेकिंग बर्थ हैज इन सच कास्ट एंड ट्राइब्स. और टेकिंग बर्थ क्या, उस बेसिस पे तो कोई एवोल्यूशन होता ही नहीं है. एवरीबॉडी, हर इंसान अलग होता है, राइट. हर इंसान के एथिक्स अलग होते हैं, हर इंसान की वैल्यू अलग होती है. चाहे वो अच्छे से अच्छे कास्ट का, अच्छे से अच्छे ट्राइब का हो, तो भी वो हो सकता है अच्छा इंसान ना हो. और कोई इंसान की जिसकी कास्ट बहुत लो है, शायद इतना पैसे वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर उस इंसान के इंटेंशन अच्छे हो, वो अच्छा इंसान हो. तो लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ये है कि कुछ भी करो, चाहे तुम
किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग क्यों ना करते हो, किसी भी कास्ट, किसी भी ट्राइब, किसी भी कंट्री, किसी भी जगह से बिलोंग क्यों ना करते हो, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड टू ट्रीट ईच एंड एवरी अदर पर्सन एज अ गुड एज यू ट्रीट योरसेल्फ इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ हमारे सारे के सारे साइलेंट फीचर्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक कैरी ऑन करेंगे। वर्कशीट्स कंप्लीट करना, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो टिक करके रख देना, वी विल सॉल्व इट। होप यू आर वॉचिंग दिस, बाय।